कहाँ गए थे हम? किसको पता है? दिल्ली स्कूल में क्यों गए थे? क्या चेक कर रहे थे? आपको कैसा लगा? पता करना है ना? तो आपको पूछना जरूरी है ना? पढ़ाई हो रही है। अभी कौन सा सब्जेक्ट है? सोशल साइंस। अच्छा, इस पे चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, इस पे क्या खुद ही लिखते हो? जी जी। अच्छा कैसा चल रहा है? कौन सी क्लास में? 10th। अच्छा 10th। चलो पढ़ जरा पढ़ ओके। Industrialization in the colonies. Let us now move to India to see how a colony industrializes. Once again, we will look not only at factory industries but also at the Sahil Singh. The age of Indian textile. Before the age of mechanism, industries, skill and cotton goods from Indian dominate the international markets in textiles. Factories come up. The first cotton mill in Bombay came up in 1954 and it went into production 2 years later. By 1964, 4 mills were at work with 19,000 factories come up. The first cotton mill in Bombay come up in 1854 and it went into product years later by 1862. और आप कौन सी क्लास में? शाबाश, उठो जरा, पढ़ो जरा। जोर से The forest of WRI derived. जोर से पढ़ो, जोर से। शाबाश शाबाश शाबाश। आप पढ़ो जरा। The making of the globe WRD word has a long HIST hosted WHS आप पढ़ो जरा। which is the बैठिए। The age of industrialization is often associated with the growth of बैठ जरा, पढ़ो जरा। इधर क्यों नहीं है? पढ़ो जरा। In Victorian Britain, there was no shortage of human labor. Poor peasants and vagrants moved to the cities in large number in search of jobs, waiting for work. As you will, when there is in many industrialization, the demand for labor was seasonal gas works and breweries were. Second, the news industries could not easily displace traditional industries even at the end of the industries 19th century lost than 24. अच्छा पढ़ो जरा। कैसे सकता है? During the 19th century, nationalism emerged as a force which brought about sweeping change in the political and national words of. During the 19th century, nationalism emerged as the force which brought about sweeping changing in the. ये उनको लाइट वगैरह का The age of Indian textile. Before the age of machine industry, silks and cotton goods from Indian dominated the international market in textiles. Cottons were produced in many countries, but the industries were set up in different regions by varying sorts of people. Let us see who they were. The history of many business groups goes back to trade with China. From the last 18th century, as you have.
Hand labor and steam power. In Victorian Britain, there was no shortage of human labor. Poor peasants and vagrants moved to the cities in large number in search of jobs, waiting for work. As you will know, when मरगवाश था ये मंजर। नहीं लाइट इनको बच्चों को भी चाहिए। all too often we associate industrialization with the growth of factory industry. When we talk of industrial production, we refer to factory production. क्या नाम है? Before the Industrial Revolution, all too often we associated industrialization with the growth of factory industry. When we talk of industrial production, we refer to factory production. When we talk of industrial workers, क्या नाम है आपका? है? There are certain forms of partiality in modern democracy. Actually, there is no single forms of the democracy which can be given about the partiality. All the forms of partiality are different from each other from the point of view of statistical objective results, etc. Some of these forms of given below power is और जरा The age of industrialization after a station with the growth of factory or industry. Before the emergency of factory would got produced within family from और जरा factories began to come up in India in the late 90s. These were set up in different regions of country by different types of people. With the expansion of factories, demand of worker increased. During the Swadeshi movement, nationalist आराम से पढ़ो आराम से। industrialization after that with the बैठ जाओ। ऐसे फिर क्या बताओ जरा कुछ। कैसी है तैयारी आपकी? अच्छा आएगा एग्जाम? यस सर। कैसे? कब करेंगे? थोड़ा सा मेहनत और करनी पड़ेगी, ठीक है? यस सर। करेंगे? यस सर। थोड़ी सी जो कमी है उसको पूरा करेंगे और मुझे लगता है यहाँ पर स्टार्ट ठीक है। चलो थोड़ा बहुत बाकी स्कूल से उतना तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ बच्चे हैं जिनको अभी देखना जरूरी है। कम से कम इनको पढ़ना अच्छे से आ जाएगा, ठीक है? मेहनत करनी है आपको, उम्मीद है। अब कुछ स्कूलों में गया हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन चलो आप तो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ ही लेते हो, है ना? यस सर। मध्य से मेहनत करें, 10th में आप हो तो आपको और ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है? कोशिश करो, मेहनत करो आगे, ठीक है? अच्छे तो ठीक है, थोड़ा सा और थोड़ा कमी है, चलो बेहतर है। हमारे साथ बहुत अच्छे पिछली बार का रिजल्ट भी बहुत अच्छा था हमारा मैट्रिक का। 80 से ऊपर था हमारा पिछली बार का। थोड़ा सा नहीं, आज इसमें पता क्या है, देखो बच्चे की वो बेसिक एजुकेशन के बारे में हमने कहा है, और उसके अलावा जो अभी अब इनके ब्रेक हो गए ना, नहीं करो ब्रेक। तो अब मामला ये है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है अलग से तो क्या फायदा बता के बस आपसे थोड़ा सा बात करेंगे, चलेंगे, बैठो माजी, ठीक है? ये थोड़ा सा देख है ना, जितना कोशिश कर सकते हैं करने। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि उस्ताद का मुकाम एक बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है ना माजी? बिल्कुल। लेकिन सरकार भी, लोग भी अब नाराजगी जता रहे हैं, है ना? बदनामी इतनी हो गई है कि अब
अगर बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन बच्चे आपके स्कूल में नहीं बोल रहे, है ना, गवर्नमेंट स्कूल में, है कि नहीं। तो अब जिसके पास कुछ भी नहीं है वो आखिर में ये सोचता है चलो यार बच्चे को कहीं न कहीं चलो कुछ न कुछ तो वो गवर्नमेंट स्कूल से ले लेते हैं। हमने एक माशरा ऐसा बनाना है जिसकी मैं ख्वाहिश कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल सबसे बेहतर बने, वहाँ की एजुकेशन बेहतर है और जो टीचर सिलेक्ट हुआ है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो प्राइवेट से बड़ा बेहतर होना चाहिए। आज से पहले होता था लेकिन ये कुछ बीच में से 5-10 साल का गैप जो हुआ 15 साल का, इसमें थोड़ा सा बदनामी बहुत होगी, है ना। अब जैसे मैंने कल भी कहा आज भी कह रहा हूँ कि अब सरकार ने परफॉर्मेंस बेसिस पे प्रमोशन देने का काम किया, है ना। कहीं न कहीं ये अपने आप में ही एक सोचने वाली बात है ना। और जितना अब ये बच्चों को तो बोल नहीं सकते हैं। बच्चे क्या होते हैं कि इनको अगर बोलेंगे घर ही बैठना है तो है ना, लेकिन अब इनको समझाना चलाना ये आपका काम है। माँ बाप तो घर से भेज देते हैं 10 to 4 आपके हाथ में और आपने उसको इतनी कोशिश करनी है। जैसे मैंने कल कहा प्राइवेट इदारों में ऐसा होता है कि वो जो छोटे जो प्री एजुकेशन होती है ना उस पर फोकस करते हैं। अभी 10th का बच्चा तभी पढ़ेगा जब उसकी ट्रेनिंग अच्छी है, तो उस चीज़ पे भी फोकस करना और अपना बेस्ट देना है। अगर हम यहाँ पे वक्त गुजार रहे हैं दिल से आपने यहाँ पे गए और दिल लगाकर बच्चों को, पहले ज़माने में जो एजुकेशन होती थी हमें पढ़ाते थे एक टीचर एक बच्चे को खड़ा करके पूछता था, है ना। अब वो माहौल मुझे लगता है उसमें भी कमी है। टीचर बोल रहा है छोड़ो यार हमें जाएगा। अब गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी लाई कि टीचर के हाथ बंद दिए, लेकिन अब उस चीज़ को हमने नहीं देखना। उसके अलावा कोई तरीके ऐसे निकालने हैं जिससे हम बच्चों को बेहतर तालीम दे पाए, है ना, है कि नहीं। उस पर फोकस करना है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसकी हिम्मत करो। देखो आप हैं, आप अपना वक्त निकाल लोगे, लेकिन जो पीछे वाली नस्ल है ये कहाँ जाएगी। और ये आप अपने सहारे अपने इसके साथ छोड़ के जा रहे हैं, है ना। तो इसमें थोड़ा आपको ध्यान देना है। माशरा आपसे ही बनना है और टीचर को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है, पुख्ता तरीके से। मुझे तो अच्छा लगा, चलो जितने भी बच्चों ने कुछ तो बेहतर, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ जितना मैं घूम फिर के आया अच्छी बात है। मुझे तो अच्छा लगा क्योंकि बहुत स्कूलों में गया, वहाँ पे 10th का बच्चा ये वर्ड नहीं पढ़ पा रहा। चलो थोड़ा क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी एक मैसेज। नहीं मैं कह रहा हूँ जो कमी है उसको भी पूरा, ठीक है। मुझे हमारा बच्चा यहाँ से जाए उसको लगना चाहिए कि मैं किसी इदारे से निकल जा रहा हूँ। वरना प्राइवेट के अंदर जो टीचर होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं कि उनकी वहाँ पे कोई रिक्रूटमेंट होती है। वहाँ पे जो घर के अंदर है तो चलो उठा के तो वहाँ वो अगर बेस्ट दे सकता है। मैंने कल देखा था एक रूम के अंदर 100 बच्चे थे प्राइवेट से और वो बच्चे पढ़ रहे थे, है ना। फिर अगर उन बच्चों को आप गवर्नमेंट स्कूलों से कम्पीट करवाएंगे वो बेहतर क्यों है? क्योंकि टीचर का वो जो टीचिंग का तरीका है तो उसने थोड़ा सा बदला, उसमें थोड़ा सा बदलाव लाइए, अच्छा लगता है, ठीक है माजी, करेंगे कोशिश, है ना। बड़ा मुश्किल है जी, बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और अगर ये नस्लें नहीं, हमारे बच्चे नहीं सुधरेंगे तो माशरा कभी नहीं सुधरेगा। ये बात सच है। मैं चाहे कितना जोर लगा लूँ, कुछ भी कर लूँ, लेकिन अकेला इस सिस्टम को ऐसे नहीं बदल सकता। माशरे के अंदर एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। और हमारे बच्चे कुछ लोग आते हैं खाना खाने परिवार से उठा के भेज देते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को भी देखा। मैंने कहा अगर किसी के घर में गाय या भैंस होगी ना आम, तो अगर उसके रिलेशन में किसी की डेथ होगी तो सबको जाना पड़े। लेकिन वो आदमी अगर मातम पे जा रहा है ना, उसको पता है किसी की मौत हुई, रिलेटिव की, अपने खून का कोई मर गया, लेकिन वो क्या करता है, वो मोहल्ले में जाकर पहले मोहल्ले वालों को बोलता है यार मेरी गाय का ख्याल रखना, फिर मातमदारी पर बन जाता है। माँ बाप हमारे ऐसे हैं कि जानवर से भी बदतर बच्चे का सलूक करते हैं। जानवर की जितनी केयर करते हैं उतने बच्चों की नहीं करते। माँ बाप को भी ये बड़ा ज़रूरी है, आप उनको भी बुलाइए, पेरेंट्स को, उनसे भी सलाह लीजिए कि हमें क्या करना है, उनको भी बताइए कि आपको क्या करना है। देखो बच्चे का क्या है,
वो अगर उसको बोलेंगे नहीं जाना है, नहीं जाएगा। बहुत कम बच्चे ऐसे जिनको इंटरेस्ट है में स्कूल जाए, लेकिन उन पेरेंट्स को भी आपने एजुकेशन सिर्फ बच्चों को नहीं देनी है, आपकी एजुकेशन माशरे के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, पब्लिक के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो खोया हुआ जो मुकाम है उसे वापस लाना, और अगर वो चीज़ें आ गई तो बहुत बड़ा बदलाव है ना। बदलाव एजुकेशन से आएगा। इनकलाब बड़े लोग बातें करते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। हर बंदे को एजुकेट होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और उस चीज़ को, माशरे को मेरे साथ आप लोग मिलकर, मेरी मैन पावर को आप है, क्योंकि चाहे मैं कितना ही बोलूँ उससे फर्क नहीं पड़ता जब तक ना आप मुझे उसमें कोऑपरेट करो, है ना। और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई काम अगर छूट जाए, रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एजुकेशन का एक लम्हा भी एक बच्चे की तालीम को छोड़ दोगे ना, तो वो इंसान की एजुकेशन वहीं पे खत्म हो जाती है, और वो नस्लों की बेहतरी भी कर सकता है। अगर मैंने तालीम हासिल नहीं की होती तो आज मैं कहीं नहीं। जब मैंने पढ़ा, मैं गया, मैंने देखा, हम किसी के घर में जाते हैं ना, घर में, हमारे इलाके में घरों में पैसा लगता है, पता है आपको, हमारे सबसे ज़्यादा महंगे घर है। मैं बता रहा हूँ, हमें समझ नहीं आ रही है, क्योंकि हम जब रेत उठाते हैं ना, एक टीन का डिब्बा हमें 100 रुपये का मिलता है। शहर के अंदर सस्ता है ना। ईंटें हम लगाते हैं, हमें सबसे ज़्यादा महंगी ईंट मिलती है ना। लेकिन फिर भी हमारे घर अच्छे क्यों नहीं है शहर में? मिस्त्री भी हम अच्छे लगाते हैं, उसको रेट भी उसी हिसाब से देते हैं जो शहर के अंदर रेट देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे घर अच्छे क्यों नहीं? क्या कभी इस पर मुहासबा आपने किया? हम भी छत के ऊपर टीन लगाते हैं, हम भी प्लास्टर करते हैं, हम भी दीवारें देते हैं, हम भी लकड़ी के वो खिड़कियां लगाते हैं, दरवाजे लगाते हैं। फिर वजह का क्या है कि हमारे घर खूबसूरत नहीं है? किसी ने कुछ पहचाना इसको? नहीं, किसी ने सोचा किसी ने? इसकी वजह एक कि जिस मिस्त्री को हम लगा रहे हैं उसको पैसा तो उतना दे रहे हैं, लेकिन वो मिस्त्री ढंग का नहीं है। जिस मिस्त्री से हम सीमेंट करवा रहे हैं वो कर रहा है, हमको पैसा उतना ही लग रहा है, लेकिन उसकी सफाई नहीं है। और मिस्त्री का सही होना, साफ सफाई रखना, और मकान उससे भी खूबसूरत हमारा है, क्योंकि पैसा हम भी उतना ही लगा रहे हैं। और कुछ लोग आपने देखे होंगे, वो सीखते कहाँ हैं? जब वो बाकी लोगों के पास जाते हैं, दूसरे घरों में जाते हैं, वो उसका घर देखते हैं, उसके घर के अंदर खिड़की कौन सी है। जब वो घर वापस लौटता है ना, वो बोलता नहीं मुझे ऐसी ही बनानी, और ये है तरबियत, है ना। वरना खिड़की हम भी बनाते हैं, डिजाइन हम देखते हैं, हम बोलते नहीं हम भी मकान का स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि जब कोई किसी के घर जाता है तो सीखता है ना। तो मुझे लगता है हमने दिल्ली का एक मॉडल बनाया था, उसमें हमने बैरून ममालिक टीचर्स की ट्रेनिंग को भेजा, और वहाँ सर आकर उन्होंने जो है एक रेवोल्यूशन लाया। जैसे आप भी आपकी काउंसलिंग वगैरह होती है, जाते हैं आप ट्रेनिंग वगैरह, उस ट्रेनिंग से आपको सीखना है, और इंसान मरते दम तक सीखता है। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैं भी जानता हूँ, हमने ये किताबें नहीं पढ़ी, मैंने साइंस में नए सिलेबस के तहत बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा है। मैं ये बात करूँगा जैसे हमने कहा ना, जैसे हमने किया, अब आपको भी दोबारा से वो चीज़ें सीखनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह सकता, और आपको इस बात का बुरा भी नहीं मानूंगा, क्योंकि एजुकेशन का सिस्टम बदल चुका है। जो चीज़ें हमने नहीं देखी है, हमने उस पर फोकस करना, और हमें ज़्यादा मेहनत करनी है। बच्चों से ज़्यादा हमें पढ़ना है कि हमने बच्चों को क्या पढ़ाना है, और वो कैसे पढ़े, और उनको खड़ा होकर पूछना, क्लास में खड़े होकर या आगे करके मुझसे पढ़वाना, ठीक है। और एजुकेशन की पॉलिसी को बेहतर करने के लिए आप लोग, मुझे लगता है, कोशिश करेंगे, ठीक है माँ जी। ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, अपने पास इतना ही ज्ञान है, जितना है बांट देंगे, है कि नहीं। बाकी ज्ञानी तो उतने हैं नहीं, लेकिन समझ सकते